Namaskar, I am Priyadarshan and you are welcome in the State Council of Educational Research and Training, Bihar, Patna. Dear children, today we are going to resume the remaining parts of the previous lesson, Animals in Prison, written by Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India. So, in the previous lessons, we read that how Pandit Nehru spent his time, spent his months in the prison of Dehradun. Thereafter, Pandit Nehru also describes certain events which took place in the various prisons of our country, as for example, he talks about Alipur jail, he talks about Bareilly jail, he talks about Naini jail. So, as we discussed that Jawaharlal Nehru spent 9 years in different Indian prisons in the wake of freedom struggle. So, how jail life is difficult, which kind of situation the inmates had to face during his time period. So, all these things we came to know. And the special thing about his imprisonment is that how Jawaharlal Nehru came in close contacts. He got intimated with different sorts of creatures, birds, animals, insects in his prison cells. He himself has described that this was very important for his engagement, because prison life, cell life is very much lonely in nature. So, it is quite important to find some sort of engagement, and it was not easy for him or prisoners like him to interact with outside people. Therefore, he got acquainted with different sorts of creatures which were in his surroundings, which were in his cells. So, it provided him an engagement, it drove away to a certain extent the loneliness which was bound to take place there, and also it developed a kind of keen observation in the prisoners, particularly here Jawaharlal Nehru. So, we come to know about his keen observation, and this keen observation in fact became a great source of knowledge for students, and it took the shape of his autobiography. तो प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछले पाठ में हम लोगों ने एनिमल्स इन प्रिजन को शुरू किया था, और यह पाठ पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। इस पाठ में पंडित नेहरू अपनी जेल की यात्रा या जेल में बिताए गए समय उसके बारे में बताते हैं। यह सफ़र देहरादून से शुरू होता है, जैसा कि इस पाठ में दिया गया है। उसके बाद भारत के अन्य जेलों में बिताए गए समय के बारे में भी हमें वे बताते हैं। जैसे उन्होंने जो वक्त बरेली के जेल में बिताया, वहाँ जो कुछ घटनाएं हुई, अलीपुर के जेल में जो वेस्ट बंगाल में, वहाँ जो कुछ भी बातें हुई नैनी के जेल में, तो इस तरह से वो विभिन्न जेलों के बारे में बताते हैं और उनका जो इंटरेक्शन हुआ वहाँ खासकर प्रकृति से, खासकर वहाँ के विभिन्न प्रकार के जीवों से, वहाँ के आसपास के वातावरण से, तो यह हमें उनकी जो सूक्ष्म अवलोकन दृष्टि थी उसके बारे में भी बताता है, और इससे बहुत सारी बातें, रोचक बातें हम सबको पढ़ने के लिए मिलता है, समझने के लिए मिलता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस कम to the paragraph of this story. Here Pandit Nehru writes, in Dehradun I saw a new animal. यहाँ नेहरू जी कह रहे हैं कि देहरादून में उनको एक नए जीव से, एक नए जानवर से उनका सामना होता है, और rather
एन एनिमल विच वॉज न्यू टू मी, और ये भी कहते हैं एक अलग किस्म का जानवर जो उनके लिए भी बिल्कुल नया था. I was just standing at the jail gate talking to the jailer when we noticed a man outside carrying a strange animal. वो कहते हैं कि वो गेट के बाहर जो गेट कीपर था या जो जेलर था गेट के बाहर उससे खड़े होकर वो बातचीत कर रहे थे. उस वक्त वो देखते हैं एक इंसान, एक आदमी एक बड़े ही अजीब किस्म के जानवर को ला रहा है. The jailer sent for him. जेलर ने उस आदमी को बुलाया. And I saw something between a lizard and a crocodile. और मैं जो देखा वह कुछ ऐसा था, या उसको यूँ समझें कि वह लिजर्ड और क्रोकोडाइल, एक छिपकली और क्रोकोडाइल मगरमच्छ, उसके बीच का वह जानवर था. मतलब नहीं तो पूरी तरह से लिजर्ड था और नहीं पूरी तरह से क्रोकोडाइल था, लेकिन उसी के बीच का कोई था. अबाउट 2 feet लॉन्ग, और वह जानवर तकरीबन 2 feet लंबा था. विथ क्लॉज, उसके पंजे भी थे. एंड स्केली कवरिंग, और उसके ऊपर एक कवर था, स्केली कवर था. दिस एनिमल विच वॉज वेरी मच अलाइव, और यह जीव जो पूरी तरह से जिंदा था, जीवित था, had been twisted round in a most peculiar way, forming a kind of knot. और उसको इस तरह से ऐंठ कर या बांध कर रखा गया था कि एक नोट बन जाता है, एक गांठ सी बन जाती है. And its owner had passed a pole through this knot and was merrily carrying it in this fashion. और उसका जो मालिक था जो उसको ला रहा था, उसने उस गांठ के बीच में एक डंडा डाले हुए था और उसी तरह से उसको उठाकर ला रहा था. He called it a bow, और उसने बताया इस जानवर का नाम बो है. When asked by the jailer what he proposed to do with it, जब जेलर ने पूछा कि तुम इसके साथ क्या करोगे या तुम इसका क्या करोगे, he replied with a broad smile, वो एक बड़ी मुस्कान के साथ जवाब देता है that he would make भुजी, कि वह इसका भुजी बना लेगा. यह उसका एक काइंड ऑफ फ्राइड वेजिटेबल, एक फ्राइड वेजिटेबल को हम भुजी कहते हैं, तो बोलता है कि हम उसका भुजी बना लेंगे, या यहाँ है काइंड ऑफ करी आउट ऑफ इट. उसी ढंग का मतलब हम उसको पकाकर खा लेंगे. ही वॉज अ फॉरेस्ट ड्वेलर, वह एक वनवासी था. सब्सिक्वेंटली आई डिस्कवर्ड फ्रॉम रीडिंग F.W. चैम्पियंस बुक, और बाद में जब नेहरू जी F.W. चैम्पियंस की किताब जिसका नाम है द जंगल इन सनलाइट एंड शैडो, इसको पढ़ते हैं, दैट दिस एनिमल वाज द पेंगोलिन. और इस तरह से तब इनको पता चलता है कि यह जानवर पेंगोलिन था, जिसको गेक भी कहते हैं, या यह भी एक किस्म का छिपकली ही है या छिपकली की प्रजाति का ही है. So this is how, dear children, Pandit Nehru, here he describes that on this particular day when he was talking, जब वो बात कर रहे हैं जेलर से गेट के बाहर, तो a person comes with a very strange kind of animal. तो एक आदमी आता है जो एक बहुत ही अजीब किस्म का जीव लिए हुए है. वो बिल्कुल वो कहते हैं कि वह छिपकली और क्रोकोडाइल के बीच का जानवर है. उसकी लंबाई तकरीबन 2 फीट की है, और उसे वो एक नोट के तरह बना करके, उसे ऐंठ कर एक गांठ की तरह बना करके, और उसमें एक डंडा डाल करके उसको ला रहा है. जब जेलर उससे पूछता है कि भाई तुम इसका क्या करोगे, तो वो बोलता है कि हम इसका भुजी बना लेंगे. So this is how, and though it may be possible that he might have said jokingly, क्योंकि बोलने के साथ वो मुस्कुराता भी है वो इंसान, लेकिन बाद में यह भी पता चलता है कि वह एक बनवासी था, और इस तरह से यह इवेंट यहीं समाप्त होती है. So this is how this event takes place here. Let us see the next paragraph of this story. Prisoners, especially long-term convicts, कैदी
खासकर जो लंबे समय से जेल में हैं, लंबे समय से अभियुक्त हैं, हैव टू सफ़र मोस्ट फ्रॉम इमोशनल स्टार्वेशन। इमोशनल स्टार्वेशन, इस वर्ड को देखें ज़रा। इमोशनल स्टार्वेशन हिंदी में कहें तो भावनात्मक भूख जिसको आप कहते हैं। स्टार्वेशन इज भूख ऑफ कोर्स एंड इमोशन इज भावना। तो बच्चों यहाँ बात यह है कि अगर आपको अपने फैमिली मेम्बर से, अपने परिवार के जनों से दूर कर दिया जाए काफ़ी समय के लिए, तो एक ढंग से आप में इमोशनल स्टार्वेशन होगी, आप में एक भावनात्मक भूख जगेगी अपने घर वालों से मिलने के लिए। तो उसे ही हम इमोशनल स्टार्वेशन कहते हैं। जब आप अपने खास से, अपने सगे संबंधियों से दूर हो जाते हैं तो उनसे मिलने की जो तड़प होती है, उसी तड़प को हम इमोशनल स्टार्वेशन कहते हैं। तो ऑफ कोर्स as he says in this paragraph, so prisoners especially long term convicts, जो बहुत लंबे समय के लिए सजा काट रहे हैं, have to suffer most from emotional starvation। तो उनमें ये इमोशनल स्टार्वेशन पाया जाता है। Often they seek some emotional satisfaction by keeping animal pets। और अक्सर वो क्या करते हैं कि अपनी भावनात्मक संतोष के लिए, संतुष्टि के लिए जीव जंतुओं को पाल लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी हम लोगों ने बात किया था कि एक ढंग का इंगेजमेंट मिलता है। द ऑर्डिनरी प्रिजनर कैनॉट कीप देम। जो सामान्य कैदी हैं वो इसे रख नहीं सकते, बट द कॉन्विक्ट, जो सजा याफ्ता है, जिनको सजा मिल चुकी है लंबे अवधि के लिए, तो उसे हम कन्विक्ट कहते हैं। बट द कन्विक्ट ओवरसीयर्स have a little more freedom and the jail staff usually does not object। लेकिन जो सजा याफ्ता है वो कर सकते हैं, वो पाल सकते हैं, और जो जेल के अधिकारीगण होते हैं उसका विरोध नहीं करते हैं। The commonest pets were squirrels। और सबसे जो सामान्य पालतू जीव थे वो squirrels थे, गिलहरियाँ थी। And strangely mongooses, और मोंगूज भी थी। डॉग्स आर नॉट अलाउड इन जेल्स। कुत्ते जेल में अलाउड नहीं थे। बट कैट्स सीम टू बी एनकरेज्ड। लेकिन बिल्लियों को इजाज़त थी, बिल्ली को लोग पाल सकते थे। अ लिटिल किटन मेड फ्रेंड्स विथ ह्यूमन्स। और नेहरू जी कहते हैं कि एक बार एक छोटी सी बिल्ली से उनकी दोस्ती हो गई। It belonged to a jail official। यह एक जेल अधिकारी की बिल्ली थी। And when he was transferred, he took it away with him। और जब उसका ट्रांसफ़र हो गया, he took it away with him। तो उसके साथ ले गया। जब उस जेल अधिकारी की बिल्ली, और जब जेल अधिकारी का ट्रांसफ़र हो जाता है, अपनी बिल्ली को वो अपने साथ ले जाता है। I missed it। लेकिन मुझे इसका अफसोस रहा, मैं उसे मिस करता था। ऑल्दो डॉग्स आर नॉट अलाउड। यद्यपि कुत्ते अलाउड नहीं हैं, कुत्ते को आप जेलों में नहीं पाल सकते हैं। आई गॉट टाइड अप विथ सम डॉग्स एक्सीडेंटली इन देहरादून। लेकिन किसी तरह से कुछ कुत्तों से मेरा लगाव हो गया देहरादून में। अ जेल ऑफिशियल हैड ब्रॉट अ बिच। जेल के अधिकारी एक बिच लाए थे जो फीमेल डॉग होता है। एंड देन ही वॉज ट्रांसफर्ड। और तब फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया, उनका तबादला हो गया, उनका स्थानांतरण हो गया, उनकी बदली हो गई। एंड ही डिजर्टेड हर। और फिर उस बिच को वो छोड़ देते हैं। द पुअर थिंग बिकेम अ होमलेस वैंडरर। और इस तरह से वो बिच होमलेस वैंडरर हो जाती है।
वह बेघरबार हो जाती हैं और इधर उधर भटकने लगती हैं। तो हियर पंडित नेहरू tells us now that which animal are allowed to be kept as pets in prison and which animals are not allowed to be kept in the prisons. So even he says kittens were allowed, squirrels were allowed, mongooses were allowed, but not the dogs. वो ये भी बता रहे हैं कि एक बार एक जेल के अधिकारी हैं, उन्होंने बिल्ली पाल रखी थी और उस बिल्ली से उनका लगाव हो गया था, लेकिन जब उस अधिकारी का स्थानांतरण हो गया, जब उनका तबादला हो गया, तो उस किटन को, उस बिल्ली को अपने साथ ले गए। तो नेहरू जी उसे मिस करते थे। आगे वो कह रहे हैं कि किसी तरह से उनको कुछ कुत्तों से लगाव हो गया, और ये कुत्तों से लगाव की जो कहानी है यह भी जेल अधिकारी के साथ जुड़ी हुई है। वो जेल अधिकारी एक बिच को लाए थे और जब वो उनका ट्रांसफ़र हो गया तो उन्होंने उसको वहीं छोड़ दिया। तो उसके बाद से वह बिच आवारा हो गई और इधर उधर भटकने लगी। सो दिस इज़ हाउ पंडित नेहरू टेल्स अबाउट हिज इंट्रोडक्शन, हिज एक्वेंटेंसेज, उनका जान पहचान, उनका परिचय with different sorts of animals in the prison. Let us see the next one. Living under culverts, culverts नालियों को कहते हैं। So living under culverts, so नालियों के नीचे वो रहती थी, वो बिच। Picking up scraps from the warders, और जो कुछ भी लोग वार्डर्स खाने के लिए टुकड़े वगैरह जो कुछ भी मिल जाता था उसको, उस पे वो जीवित रहती थी। यूजुअली स्टार्विंग, अक्सर भूखी ही रहती थी। As I was being kept in the lockup outside the jail proper, she used to come to me begging for food. और जैसा कि मैं बाहर के लॉकअप में मुझे बंदी बनाया गया था, तो अक्सर वो मुझे या मेरे पास वो आती थी, वह बिच, और खाना मांगती थी। I began to feed her regularly, और मैं उसे लगभग लगातार खाना खिलाना शुरू कर दिया या खाना देना शुरू कर दिया। And she gave birth to a litter of pups, और उसने बहुत सारे, ये जो लिटर है इसे ये जो लिटर वर्ड है, यहाँ लिटर ऑफ पपीज है। तो ये जो लिटर है इसका मतलब होता है सह संतति। सह संतति, एक साथ जब बहुत सारे बच्चे जन्म लेते हैं किसी जीव से, जैसे अक्सर जो बीचेज हैं तो बहुत सारे पपीज को एक साथ जन्म देते हैं, तो एक साथ जन्म लेने वाले जीव, एक साथ जन्म लेने वाले जंतु सहसंतति उसे कहते हैं। So I began to feed her regularly and she gave birth to a litter of puppies under a culvert. तो उस नाली के नीचे वो बहुत सारे पपीज को जन्म दी। One of the puppies fell ill, और उनमें से एक पपीज, एक पिल्ला बीमार पड़ गया with a violent distemper, और ये डिस्टेम्पर कुत्ते की एक बीमारी है, तो वह बीमार पड़ जाता है, वह रोगग्रस्त हो जाता है। And gave me a great deal of trouble, और नेहरू जी कहते हैं कि उसके बीमार पड़ने से उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई, वो परेशान हो गए। I nursed her with care, मैंने बड़ी सावधानी से उसकी तीमारदारी की, उसकी देख रेख की, उसका ख्याल रखा। And sometimes I would get up a dozen times, और ये कहते हैं
कि और कभी कभार तो मुझे एक रात में दर्जनों बार जगना पड़ा। आई वुड गेट अप a dozen times in the course of the night, रात में दर्जनों बार जगे हो to look after her, ताकि वो उसकी देखभाल कर सकें। She survived and I was happy that my nursing had pulled her round. Pulled her round, ये बहुत बेहतरीन फ्रेज है। Pulled her राउंड मतलब ठीक कर देना, ठीक कर देना। उनकी जो तीमारदारी थी, उनकी जो देख रेख थी, उनका जो उसे संभाल कर रखने का था, तो उनकी मेहनत से, उनकी देख रेख से वह पिल्ला बिल्कुल ठीक हो गया, वह पपी बिल्कुल ठीक हो गया। सो what we can sum up in this paragraph to your children, हम इससे ये समझ सकते हैं कि पंडित नेहरू was of course fond of different kinds of animals, बहुत सारे जीव जंतुओं से, या यूं कहें कि he was a great nature lover, प्रकृति के बहुत बड़े प्रेमी थे वो। पेड़ पौधों से उनका प्रेम था, जीव जंतुओं से उनका प्रेम था, और उसी सिलसिले में जब वो जीव जंतुओं की बात करते हैं तो इसी संदर्भ में एक कुत्ते की कहानी आ जाती है। और दैट बीच इन फैक्ट वाज लेफ्ट ऑन इट्स ओन बाय इट्स ऑनर व्हेन ही वाज ट्रांसफर्ड। जब जेल का एक अधिकारी उसका तबादला हो जाता है तो वह उस बिच को वहीं छोड़ देते हैं। उसके कई सारे बच्चे होते हैं, लिटर ऑफ पपीज या सह संतति जिसको आप कहते हैं, एक साथ जन्म लेने वाले जंतु। तो उनमें से एक बीमार पड़ जाता है और उस बीमार पिल्ले की पंडित नेहरू बहुत सही तरीके से तीमारदारी करते हैं। उस सिलसिले में वो ये भी कहते हैं कि रात को तो उनको एक बार ऐसा हुआ कि दर्जनों बार उठ कर उसे देखने के लिए जाना पड़ा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन से ही वॉज ए ग्रेट लवर ऑफ एनिमल्स। इस तरह से आप कह सकते हैं कि वह बहुत ही बड़े पशु प्रेमी थे। एंड द पपी गॉट क्योर्ड, और वह बिल्कुल ठीक हो जाता है, बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। सो दिस इज हाउ वी केम टू नो अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ पंडित नेहरू through this paragraph, that he was of course a great nation lover. Let us see the next part of the story. I came in contact with animals for more than in prison than I had done outside. ये कहते हैं कि जेल में इन्होंने बहुत ज़्यादा जानवरों के साथ इनका कॉन्टैक्ट हुआ आउटसाइड की तुलना में, बाहर की तुलना में। I had always been fond of dogs and had kept some, but I could never look after them properly and other matters claimed my attention. कुत्ते को एक बार इन्होंने पाला भी था, लेकिन बहुत सारे काम हो जाते थे तो ये बहुत दिनों तक इसके साथ कंटिन्यू नहीं रह सके। इन प्रिजन आई वॉज ग्रेटफुल फॉर देयर कंपनी, लेकिन जेल में बग था और ये सारे जीव इनके साथ थे। इंडियंस डोंट एज ए रूल अप्रूव ऑफ एनिमल्स एज हाउस होल्ड पेट्स। भारतीय अक्सर जीव जंतुओं को पालने में इस ढंग से यकीन नहीं रखते हैं, ऐसा रिवाज नहीं है। It is remarkable that in spite of their general philosophy of non-violence to animals, they are often similarly careless and unkind to them. लेकिन जो सिद्धांत अक्सर हिंदुस्तानियों के बारे में, भारतीयों के बारे में कहा जाता है कि वह अहिंसक होते हैं जानवरों के प्रति, लेकिन यहाँ वो पाते हैं, कह रहे हैं पंडित नेहरू, कि वो केयरलेस हैं और अनकाइंड भी होते हैं। Even the cow, that favored animal, though looked up to and almost worshipped by many Hindu and often the cause of rights, is not treated kindly. Worship and kindness don't always go together. यहाँ जो मुख्य रूप से यह कह रहे हैं कि पूजा करना अलग बात है और जीवों के प्रति दया भाव रखना अलग बात है। लोग गाय को पालते तो हैं, गाय इतना पवित्र है कि उसके नाम पर दंगे फसाद हो जाते हैं, फिर भी लोग उसके साथ बेरहमी से पेश आते हैं, उसके साथ दया नहीं दिखाते हैं। So this was the observation of Nehru about Indian tradition, its people, its ethos, its values. Let us see the next part of the story. Different countries
have adopted different animals as symbols of their ambition of character. The eagle of the United States of America and of Germany, the lion, the bulldog of England. ये कह रहे हैं कि बहुत सारे देश एक सिंबल के तौर पर अनेक जीवों को पालते मानते हैं, उसको अपना सिंबल बनाते हैं, जैसा कि द ईगल्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बाज संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए है, एंड ऑफ जर्मनी द लायन, जर्मनी के लिए लायन है, शेर है, एंड बुलडॉग ऑफ इंग्लैंड, द फाइटिंग कॉक ऑफ फ्रांस, लड़ते हुए मुर्गे, यह फ्रांस का सिंबल है, द बेयर ऑफ ओल्ड रशिया, और भालू रशिया के लिए है। हाउ फार डू दिज पैटर्न एनिमल्स मोल्ड नेशनल कैरेक्टर, और किस तरह से ये एक राष्ट्रीय चरित्र को दर्शाते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर एग्रेसिव, उनमें से अधिकांश आक्रामक है। फाइटिंग एनिमल्स, लड़ाकू जीव जंतु हैं, लड़ने वाले जीव हैं। बिस्ट ऑफ प्रे, शिकारी जीव हैं। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट द पीपल हु ग्रो अप with these examples before them should mold themselves consciously after them and stack up aggressive attitudes and roar and prey on others. Nor is it surprising that the Hindu should be mild and non-violent for his pattern animals is the cow. So इस तरह से नेहरू जी कह रहे हैं कि in fact the pattern country, जो उसको पालने वाले देश होते हैं, जो उसका सिंबल बनाते हैं, they must take care of these animals. They also can in fact emulate, वो उसके चरित्र को भी उसका नकल कर सकते हैं. Similarly here what he is trying to say that Hindus should also be kind, should also be generous, should also be caring. हिंदुओं को भी दया भाव रखनी चाहिए जीव जंतुओं के प्रति, खासकर जो यहाँ की गाय हैं. So this is how Pandit Nehru explains various symbols, in fact the different kinds of animals which different countries have symbolized in the world. Cow, it has been a symbol of a religious symbol for Indians for time immemorial. अनंत काल से गाय भी हमारे देश की एक पहचान रही है, हिंदुओं के लिए खासकर. तो हिंदूज को अवश्य ही उसके प्रति दया भाव रखनी चाहिए. So dear children, I am pretty sure you must have enjoyed this lesson, a fascinating lesson, a very impressive lesson, an influential lesson. So hopefully you shall read again the chapter. If you find an opportunity to read the book, must do it. We shall meet again with some new topic. Till then, goodbye. Stay blessed. Namaskar.